हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में हम लेसन 8 द एडवर्ब एंड इट्स काइंड पढ़ेंगे। एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड। वो वर्ड जो कोई मीनिंग ऐड करता है वर्ब में, उसको बोलते हैं एडवर्ब। हम पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा। अब हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे। काइंड्स होते हैं एडवर्ब के मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, डिग्री, एम्फसाइजिंग एंड इंटरोगेटिव। ओके, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर के बारे में पढ़ेंगे पहले। दीज एडवर्ब्स टेल अस हाउ एक्शन हैपन। एक्शन कैसे होता है उसके बारे में बताता है। They describe verb and answer the question how. कैसे होता है मतलब how it happened. The door opened suddenly. जो डोर है वो कैसे ओपन हुआ? Suddenly. इसको बोलते हैं adverb. The baby is sleeping soundly. बेबी कैसे सो रहा है? Soundly. The children behaved well. Children ने कैसा behave किया? They behaved well. The horse runs. कैसे रन करता है? फास्ट। ओके, समझ आ गया बच्चों? अब ये था मैनर। अब हम पढ़ेंगे टाइम के बारे में। These adverbs tell how action happens. They modify when action happens. They modify verbs and answer the question. When. यहाँ पे how था, कैसे होता है एक्शन। यहाँ पे बताया गया है कब होता है। The plane just taken off. Plane taken off कब? Just. The train has already arrived. Train already आ चुकी है। I am going to meet my uncle. कब? When? Tomorrow. My parents are touring Rajasthan. कब? When? Now. Okay? A place. Adverb of place. These adverbs tell us where action happened. They give information about verbs and answer the question, where. Please come here. Please come where? Please come here, Raj. I was walking nearby. Where you were walking? Nearby. I could not find my book anywhere. मुझे कहीं भी book नहीं मिल रही. That's our dog there. कहाँ पर? There. तो ये सब है एडवर्ब ऑफ प्लेस। कंटिन्यू करेंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दीज एडवर्ब्स टेल अस हाउ ऑफन एक्शन टेक प्लेस। कितनी बार। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन। इट नेवर स्नोज इन दिल्ली। दिल्ली में कभी भी स्नो नहीं होती। ही वॉज ऑलवेज रोमिंग ऑन द रोड। John practices the guitar regularly. We have been to England twice. कितनी बार? Twice. Adverb of duration. These adverbs tell us how action are done or how long they last. They answer the question how long. She stayed overnight at my house. Wait for me, I will not take long. The library is temporarily closed. Shweta stopped briefly to look in a shop. Adverb of degree. These adverbs tell us what extent or how much of an action is done. Like, I am fully prepared for the exams. I am prepared for exams. कितना? Fully. Your dishes are quite good. Her drawing is usually good. How good? Very good. This is an oversized shirt. Emphasizing adverb. We have seen that most adverbs describe verbs, but some adverbs describe adjectives or other adverbs. They are usually used to add emphasis. किसी भी चीज़ पे emphasis करना. She can run really fast. She can run fast. Really fast. My tea is hot. How hot? Too hot.
These tools are totally useful. She sings quite beautifully. In the above sentence, if we remove adverbs, there will be no change in the meaning of sentence. They are just emphasizes size words that follow them. अब यहाँ पे she can run fast, अगर हम ये adverb हटा देंगे तो मीनिंग चेंज नहीं होगा, बट ये क्या दे रहा है इस सेंटेंस पे? एम्फेसिस दे रहा है, जोर दे रहा है कि कैसे फास्ट, रियली फास्ट. माई टी इज़ हॉट, मेरी टी हॉट है. माई टी इज़ टू हॉट, मीनिंग चेंज नहीं होगा, बट ये एम्फेसिस दे रहा है टी पे कि कैसी, कितनी हॉट है टी, टू हॉट, बहुत ज़्यादा. इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का मतलब आपको पता है, क्वेश्चंस जब आ जाते हैं, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ. द क्वेश्चन वर्ड्स वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. वेयर डू यू लिव? व्हेन आर यू गोइंग टू फिनिश योर वर्क? व्हाई डू स्नेक्स फ्लिक देयर टंग? हाउ डिड यू कम? ओके, ये हो गए इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. Position of adverb. Read the position of adverb in the following sentences. The ship disappeared suddenly from view. The ship suddenly disappeared from view. Suddenly the ship disappeared from view. The ship disappeared from the view suddenly. इसमें position देखिए adverb की. Suddenly is the adverb. यहाँ पे sentence में अलग अलग position दिए हुए हैं. सेंटेंस का मतलब सेम है, बट अलग अलग तरीके से उसको सेंटेंस बनाया गया है एडवर्ब को यूज़ करते हुए. द शिप डिसअपियर्ड सडनली फ्रॉम व्यू. द शिप सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द व्यू. सडनली द शिप डिसअपियर्ड फ्रॉम व्यू एंड द शिप डिसअपियर्ड फ्रॉम द व्यू सडनली. मीनिंग चेंज नहीं हुआ, पोजीशन चेंज हुई है. In the preceding 4 sentences, the adverb suddenly is placed at different positions. Its positions does not change the meaning of the sentence. But in many sentences, the position of adverb is very critical. Its wrong position can change the meaning completely. अगर हम एडवर्ब की पोजीशन ठीक नहीं रखेंगे तो उससे पूरा मीनिंग चेंज हो सकता है. अब जैसे यहाँ पे मीनिंग चेंज नहीं हुआ, पोजीशन चेंज हुई है. किसी में अगर हमने गलत पोजीशन डाली एडवर्ब की तो मीनिंग भी बदल सकता है. देयर आर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड बाय प्लेसिंग एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस. इसके लिए इसके रूल्स हैं अलग अलग जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे. एडवर्ब ऑफ मैनर आर नॉर्मली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब एज शी सैंग ब्यूटिफुली. धोनी प्लेड मैग्निफिसेंटली. अब शी सैंग ब्यूटिफुली. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर नॉर्मली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. अब ये रूल्स हैं जो हमने फॉलो करने पड़ेंगे. एडवर्ब ऑफ मैनर आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. वर्ब के पीछे लगता है एक रूल में. ब्यूटिफुली, मैग्निफिसेंटली यहाँ पे लिखा. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर नॉर्मली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. अब जो फ्रीक्वेंसी वाला जो एडवर्ब है वो कहाँ लगता है? आफ्टर द वर्ब. She was always in time for her work. He was never late to his office. तो यहाँ पे adverb लगा. If 2 or more adverb are used in a sentence, they are placed in the order, manner, place, time as she sang beautifully there last night. Manner, place, time. Manner आया, कैसे sing किया उसने? Beautifully. कहाँ पे? There. कब? नाइट में. ये रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं अगर आपने अपने सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है पोजीशन की वजह से. फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स. सम एडवर्ब्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू द एडजेक्टिव्स. हाउएवर दिस कैन नॉट बी डन विद ऑल एडवर्ब्स. गिवन बिलो आर सम एडवर्ब्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग ly to the adjective. Some drops at the last alphabets and add I and ly to the adjectives. हम एग्जाम्पल से समझेंगे. loud plus ly loudly. bad plus ly badly.
स्वीट स्वीटली, स्लो स्लोली, इसके पीछे सबके बच्चे एल वाई लगा है। नीट नीटली, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब कन्वर्ट करा हमने। ईजी ईजीली, हैप्पी हैप्पीली, डर्टी डर्टीली। ओके, अब इसके रिलेटेड हम एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये थे हमारे एडवर्ब्स और उसके टाइप्स, ये हमने एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब हम एक्सरसाइज में मूव करेंगे। फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स, ये जो आपने अभी पढ़ा यही करना है। फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स बिलो, मेक नेसेसरी चेंजेस इन द स्पेलिंग्स टू। हमने एडवर्ब्स को एडजेक्टिव्स में, एडजेक्टिव से एडवर्ब में चेंज करना है और जहाँ पे स्पेलिंग नीडेड है चेंज करने के लिए वो भी करना है। एबंडेंट, एबंडेंट में एल वाई लग जाएगा। एबंडेंटली, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सरसाइज, जो लेंदी एक्सरसाइज है वो मैंने ऑलरेडी इसके आंसर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, क्योंकि फिर मैं आपको समझा पाऊँगी उसमें, वरना टाइम बहुत जाएगा। तो ये ऑलरेडी मैंने करा है, आप सब देखिए ध्यान से। फ्री फ्रीली, सडन सडनली, इसमें क्या हुआ, एल वाई एल वाई। केयरफुल केयरफुली, केयरफुली में डबल एल वाई आ गया, मतलब एल तो था ही ऑलरेडी, एल वाई और लग गया। ग्रेसफुल ग्रेसफुली, इसमें भी ऐसे ही हुआ। ग्रीडी ग्रीडीली, क्विक क्विकली, वार्म वार्मली, ऐसे ही एल वाई लग के हम उसको एडवर्ब फॉर्म करेंगे एडजेक्टिव से। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब्स, चूज फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे बॉक्स में आंसर्स दिए हुए हैं, हमने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है हर क्वेश्चन के लिए। दे आर डैश प्रिपेयर्ड फॉर द शो, दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द शो। आई हैव नेवर सीन एन ऑक्टोपस, मैंने कभी ऑक्टोपस नहीं देखा। आई हैव नेवर। शी रोट हर एक्सरसाइज नीटली, उसने बहुत सुंदर अपनी एक्सरसाइज नीट वे में करी, लिखी। सोहन वर्कड हार्ड एंड डिड द एक्सरसाइज वेल bravely. I received a letter from her lately. When did you go? ये इंटरोगेटिव है तो यहाँ पे आएगा when did they go. लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. She is today unable to live with me. The old man walked home slowly. The children played happily. The wheel moves rapidly. ये मैंने आंसर्स भरे हैं, बट आप इसको पहले अपने अच्छे से इसको पढ़ेंगे और फिर ऐसे नहीं कि आप इसको बस कॉपी कर लेंगे. आपने इसको पढ़ना है, ऊपर से खुद पहले आंसर्स देखने हैं और फिर आपने चेक करना है कि वेदर मैंने ठीक आंसर लिखा है या नहीं. आप सिर्फ कॉपी करेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम यहीं पे करेंगे. ड्रॉ द सर्कल अराउंड द वर्ब एंड अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ मैनर. हमने वर्ब को सर्कल करना है एंड अंडरलाइन करना है एडवर्ब ऑफ मैनर को. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. एडवर्ब ऑफ मैनर हमने पढ़ा था फर्स्ट में. फर्स्ट रूल एडवर्ब, फर्स्ट काइंड एडवर्ब ऑफ मैनर था. द डोर ओपन्ड सडनली. डोर खुला कैसे? सडनली. तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल करके दिखाया हुआ है. ओपन्ड खुला, उसको सर्कल करना है वर्ब को एंड अंडरलाइन करना है एडवर्ब को. द क्लोथ्स ड्राइड क्विकली इन द सन. द क्लोथ्स ड्राइड कैसे ड्राई हुए? क्विकली. द हॉर्स रैन फास्ट इन द रेस. कैसे रैन करा? कैसे रैन करा? फास्ट. सॉरी, मैंने इसको, हाँ ये मैंने करना है और इसको मैंने अंडरलाइन करना है. मैंने ऊपर वाले में ऑपोजिट कर दिया. हमने क्विकली को अंडरलाइन करना है एंड राइट को सर्कल करना है. द बेबी इज़ क्राइंग लाउडली. क्राइंग कैसे क्राई कर रहा है? लाउडली. द रेन पोर्ड हेविली. द रेन पोर्ड कैसे? हेविली. ये मैनर एडवर्ब ऑफ मैनर है. ये हाउ जैसे बोल पढ़ा था ना हमने, कैसे. द क्राउड वेलकम्ड देयर लीडर चीयरफुली. चीयरफुली एंड वेलकम्ड. द यंग मैन वॉकड होम क्विकली.
वॉक्ड कैसे, क्विकली. ओके. नेक्स्ट एक्सरसाइज, मेक एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज़ देम इन अ सेंटेंस बाय योर ओन. हमने एडवर्ब बनाना है वर्ड्स से, जो दिए गए वर्ड्स हैं, और फिर उसके बाद सेंटेंस भी बनाना है. यहाँ पे मैंने सेंटेंसेस भी फॉर्म कर दिए हैं. आप अपने भी सेंटेंसेस कोई भी बना सकते हैं इस वर्ड को यूज़ करके. ओके, आप ट्राई करना. आपने ये सीधा सीधा कॉपी नहीं करना है, आप पहले अपने खुद के सेंटेंसेस ट्राई करेंगे. एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. हैप्पी का हो जाएगा हैप्पीली, LY, Y रिप्लेस करके ILY लग गया, और फिर आ गया चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली. हमने ये वाला वर्ड यूज़ करना है जो हमने कन्वर्ट करा है. सॉफ्ट, सॉफ्टली. शी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली. नॉइजी, नॉइजीली. द सर्वेंट्स रैन नॉइजीली. एंग्री, एंग्रीली. ही सॉ हिम एंग्रीली. Sad, sadly. We went to his house sadly. Hurried, hurriedly. The two boys were working hurriedly. अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा गैप आ रहा है, लाइन में नहीं है, थोड़ा नीचे है, इसलिए मैंने ऐसे ही लिखा है, और लास्ट जो वर्ड है वो मैंने यहाँ लिख दिया है. ओके, तो आप ये ध्यान देना. Hurried, hurriedly. The two boys were working hurriedly. Busy, busily. The boys were working busily. Cruel, cruelly. The boys were cruelly flogged for stealing. Happy, happily. They lived happily. Bright, brightly. The sun is shining brightly. Gentle, gently. He lifted the nest gently. आप इसका ध्यान रखना, यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम है. ये इसका, ये इसका, ये इसका, और लास्ट वाला वर्ड मैंने यहाँ लिखा है, और उसका सेंटेंस भी. ओके, मैं आपको आई विल सेंड यू द पेज, एंड आपने अपने आप भी सेंटेंसेस ट्राई करने हैं. ओके, तो ये एक्सरसाइज भी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है. क्वेश्चन ABCD ये आपने अपनी बुक में करना है. ओके, और ये सेंटेंसेस आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे. 2 टाइम्स करेंगे. एक बार पहले आप पढ़ेंगे और फिर अपने आप भी सेंटेंसेस ट्राई करेंगे, और फिर बुक में लिखेंगे. ओके, और ये पूरा चैप्टर 8 द एडवर्ब आपने पढ़ना है. पेज नंबर 38 to 42 एक्सरसाइज के साथ है, आपने करना है. नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.